क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स एंड मोटर्स, नाम याद रखना। in association with Reliance Smart Bazaar. તમને સ્પર્શતા તમામ સમાચારોની છે એમને ફિકરની, એટલે જ હું આપના માટે લઈને આવ્યો છું પ્રાઇમ 9 વિથ જીગર. પ્રાઇમ 9માં આજે વાત જૂનાગઢના તોરણિયા આશ્રમ અને તેની સાથે જોડાયેલા વિવાદની. ये कोई साधु नहीं है, लंपट है। सन 19 में इलाहाबाद के प्रयागराज कुंभ के अंदर है जो कायदे से इसके सब साधुओं ने इसको मिलके मारा हुआ है, खूब धुलाई किया है और अखाड़े से निकाल दिया है। 15 दिवस तक है जो प्रयागराज कीटगंज पुलिस स्टेशन के अंदर है जो FIR इसकी फटी हुई है। के साथ विवाद ये चल रहा है कि यहाँ पे मैं 2020 से रहता हूँ, मेरी अखाड़े ने चादर विधि करी है और अभी वो मेरे ऊपर हस्तक्षेप लगा रहे कि ये आश्रम में मैं फर्जी कब्जा करके बैठा हूँ। जो मतलब इन्होंने मेरे को है जो हनुमान जयंती के समय में है जो लूटपाट किया, दूसरे महात्मा को बुलाया जिसका नाम है जो निक्कू दास है। त्रासवादी है, वो साधु नहीं है, त्रासवादी है। कायदे से त्रासवादी को बुला करके मेरे ऊपर त्रास हो जा रहा है लोगों ने। जब मैं यहाँ पे आश्रम पे नहीं रहता हूँ, कहीं जाता हूँ, तो ये किसी लड़की को बुला के यहाँ पे उसके साथ में गलत काम करते, उसको फर्जी तरीके से पैसे देते, आश्रम की संपत्ति को बर्बाद करते। और यहाँ उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, छेड़ती की, मुझे मेंटली और फिजिकली बहुत हैरास किया। वो क्या बोलते, कभी भी मतलब मेरे आसपास से मुझे छूने के बहाने ढूंढते थे। 3-4 दिवस तक तो ये लोग है जो सब दारू की महफिल मानते रहे, रात दिवस पाउडर पीते रहे, जिसके बाद में है जो फिर मेरे को मारा पीटा बुरी तरह से। मुझे आए दिन फोन के ऊपर धमकी देते, खुलेआम धमकी देते जान से मारने की। मुझे बजरंग दास जी ने भी धमकी दी है और मुझे शंकर दास ने भी धमकी दी है। आश्रम तो ले न छोड़ दो, एमने मोकू भी नहीं। તો ગુરુ શિષ્ય અને સાધ્વી જૂનાગઢના આશ્રમ કાંડની આ કહાની છે. જૂનાગઢ એટલે કે આસ્થાનો ગઢ, ભજન ભક્તિ અને ભંડારાનું ધામ એટલે જૂનાગઢ. પણ આ તપોભૂમિને કોઈકની નજર લાગી ગયો હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. એક વિવાદ માંડ શાંત પડે ત્યાં બીજો વિવાદ આ ભૂમિને કલંક લગાવે છે. પહેલાં ગાદીનો વિવાદ, ત્યારબાદ વ્યભિચારની વાત અને હવે જૂનાગઢનું અતિ પ્રાચીન તોરણિયા આશ્રમ વિવાદમાં છે. અને અહીં વાત ફરી વ્યભિચારની છે. જૂનાગઢના અંબાજી મંદિર, ભવનાથ, ભૂતનાથના મહંત પદ અને સત્તાધારના વિવાદ બાદ આ વખતે તોરણિયા આશ્રમમાં બબાલ શરૂ થઈ ગઈ છે. આખા વિવાદની શરૂઆત ક્યાંથી થઈ એ પહેલાં સમજીએ. આ છે જૂનાગઢના કેશોદ સ્થિત શ્રી ચૈતન્ય તોરણિયા હનુમાન ઉદાસીન આશ્રમ. વર્ષોથી આ આશ્રમ અહીં સ્થાપિત છે, જ્યાં લોકો આસ્થા રાખીને દાદાના દર્શને આવે છે, ત્યાં શીશ ઝુકાવે છે. પણ આ વખતે આ પવિત્ર જગ્યાને આરોપોનું લાંછન લાગ્યું છે. એવા આરોપ જેના કારણે સનાતન ધર્મને ઠેસ પહોંચી છે. લોકો વ્યથિત છે જે આ આશ્રમ સાથે જોડાયેલા છે. અને આ જ કારણે તોરણિયા આશ્રમના વર્તમાન અને પૂર્વ મહંત સામ સામે આવ્યા છે. એ મહંતો એકબીજા પર શા માટે આક્ષેપ કરી રહ્યા છે, કોના પર આક્ષેપ લાગ્યા છે અને કેવા આક્ષેપ લાગ્યા છે એની પણ વિગતે ચર્ચા કરીશું. પણ એ પહેલાં આશ્રમ સાથે જોડાયેલી આ વાત આપને જણાવવી જરૂરી હતી. આશ્રમ વર્ષોથી અહીં સ્થાપિત છે, પણ આ આશ્રમમાં છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી શંકરદાસ ગુરુ નિર્ભયદાસજી આશ્રમનું સંચાલન કરતા આવ્યા છે. પરંતુ 6 મહિના પહેલાં તેમણે સિદ્ધરાજ મુનિ નામના એક સાધુ પર વિશ્વાસ મૂકીને તેમને આશ્રમનું સંચાલન સોંપ્યું. આ બંને તસવીરો આપ જે જોઈ રહ્યા છો એમાં ગુરુ પણ છે, એની અંદર શિષ્ય પણ છે અને સાથે એ વિવાદનું કારણ પણ છે કે જે આપ જાણશો તો આપને સમજાશે કે આખરે આ આશ્રમમાં આખા વિવાદના મૂળ પાછળ શું છે. કેમ આશ્રમની અંદર આટલા વર્ષોથી જે સનાતન સચવાયેલો હતો, જે ધર્મ સચવાયેલો હતો, જે સંસ્કૃતિ સચવાયેલી હતી એની અંદર લાંછન કેમ લાગ્યું. ચોક્કસ કેશોદ પાસેનો આશ્રમ છે, અનેક લોકો અહીં આ ગયા પણ હશે અને આસપાસના લોકોની આસ્થાનું કેન્દ્ર સ્થાન પણ છે. તો પછી વિવાદ ઊભો થયો કેમ? શંકરદાસ બાપુએ
આ આશ્રમનું અહીં જે વ્યવસ્થા કરી હતી અને એમણે સિદ્ધરાજ મુનિને અહીં આ જવાબદારી સોંપી હતી. શંકરદાસ બાપુનો આક્ષેપ છે કે સિદ્ધરાજ મુનિ અહીં મહેફિલો કરે છે. જે આશ્રમ તમે જોઈ રહ્યા છો એની અંદર મહેફિલો થતા હોવાના આક્ષેપ એ જ ગુરુએ કર્યા છે પોતાના શિષ્ય પર. શંકરદાસ બાપુનો આક્ષેપ છે કે દારૂ અહીં રોજ પીવાય છે, ગાંજા અને ચરસના અહીં કસ મારવામાં આવે છે. એટલું જ નહીં, શંકરદાસે તો ત્યાં સુધી કહે છે કે અહીં મહિલાને પણ બોલાવવામાં આવે છે અને એમાં બીજા એક મોટા સાધુ પણ સામેલ છે અને આ મહિલાને બેંગાલુરુથી બોલાવીને સિદ્ધરાજે તેને સાધ્વી પણ બનાવી દીધી છે. શંકરદાસ બાપુનો આક્ષેપ છે કે આ તમામને ગેરરીતિ કરતા અટકાવવા મને મારામારી અને મારી જાનથી મારી નાખવાની ધમકીઓ પણ આપવામાં આવી છે. સૌથી પહેલાં ગુરુ શંકરદાસ બાપુએ કયા પ્રકારના આક્ષેપો કર્યા એ આપ સાંભળશો તો ખ્યાલ આવશે કે આખરે તોરણિયા આખો જે આશ્રમ છે એ શા માટે વિવાદમાં આવ્યો, શા માટે ગુરુની ગાદી પર શિષ્યએ કબજો જમાવ્યો અને એક સાધ્વી કેવી રીતે આખા કાંડમાં આવ્યા તેની પણ વાત કરીશું. પણ સૌથી પહેલાં શંકરદાસ બાપુનું આખા આ મામલે શું કહેવું છે, તેમના કેવા પ્રકારના આક્ષેપો છે એ સૌથી પહેલાં સાંભળીએ. हनुमान में करीब है जो 9 वर्ष से आश्रम में सेवा पूजा करो छो. गौशाला गायें हती मारे पास में, हरी हरी गायें हती. पर मारे को अमुक समय के बाद में ये मानस आया, जब से मेरी गाय आए सब फना हो गया आश्रम इसका पैर पड़ने के बाद में ही. और ये कोई साधु नहीं है, लंपट है. सन 19 में इलाहाबाद के प्रयागराज कुंभ के अंदर है जो कायदे से इसके सब साधुओं ने इसको मिलके मारा हुआ है, खूब धुलाई किया है और अखाड़े से निकाल दिया है. 15 दिवस तक है जो प्रयागराज कीटगंज पुलिस स्टेशन के अंदर है जो FIR इसकी फटी हुई है और अखाड़े ने खुद महंतों ने इसको निकाल दिया है. ना ये महंतों को फ़ोन करा सकता है. अगर ये महंतों को फ़ोन करा के मेरे से बोल दे, महंत बोल दे तो आश्रम खाली कर जा, तो मैं अभी खाली कर सकता हूँ. क्या अभी क्या हुआ है? अब है जो मतलब इन्होंने मेरे को है जो हनुमान जयंती के समय में है जो लूटपाट किया, दूसरे महात्मा को बुलाया सिद्ध, जिसका नाम है जो निक्कू दास है. त्रासवादी है, वो साधु नहीं है, त्रासवादी है. कायदे से त्रासवादी को बुला करके मेरे ऊपर त्रास गुजा रहे लोगों ने. मारा पीटा पूरी तरह से है जो मतलब 3-4 दिवस तक तो ये लोग है जो सब दारू की महफिल मानते रहे, रात दिवस पाउडर पीते रहे. जिसके बाद में है जो फिर मेरे को मारा पीटा पूरी तरह से, मार पीट का है जो मूड मार खूब मारे ली. अभी क्या है? अभी जा रहे हो वहाँ पे? क्या हो रहा है? मैं कैसे जा सकता हूँ? मेरे को जाता हूँ जब भी मारते हैं. कितनी बार गया हूँ, 1-2 बार पुलिस मेडिकल में है जो मतलब मैं रिपोर्ट कराई पुलिस स्टेशन में, 2-3 फरियाद किया हुआ है मैंने और मेडिकल कराया हुआ है. क्या वो भी मेडिकल रिपोर्ट पुलिस वाले मेरे को देते नहीं, उन्हीं के पास में है. अभी क्या मांग है आपकी? मेरी मांग यही है कि मेरा आश्रम मेरे को मिल जाए और है जो सुख शांति से. मेरा पैरालिसिस मारा हुआ है, शरीर में काम नहीं करता है. अगर शरीर काम करता है तो मैं कहीं भी रह सकता हूँ, पर अभी मेरे को रोटी का भी कोई ठिकाना नहीं है, कोई दे नहीं सकता है. आश्रम में मेरे से कोई सेवा पूजा होती नहीं है, मैं कहीं कुछ काम कर नहीं सकता हूँ. इसलिए मेरा आश्रम मेरे को मिल जाए, बस यही मारी मांग है. और आश्रम तो ले न छोड़ छू, एमने एम छूट मूकू भी नहीं. भले 10-20 साधु बुलाईने, साध्वी बुलाईने एनी मारकूट कराईने एने कायदेसर है जो गमे जो करवो पड़े, पण आश्रम मेरा है जो मतलब एने देवो पड़से. और मैं जेवो तो साधु नहीं. मारो भाई जिसे है ने ADG है, पहले प्रयागराज में था. पुलिस तपास करवी हो तो करी सके. मारो भाई ADG से अटाने है जो लखनऊ पुलिस मुख्यालय गेट नंबर 5 के ऊपर ड्यूटी करे से. તો શંકરદાસ બાપુને આપે સાંભળ્યા, તેમના સનસનીખેજ આક્ષેપને પણ સાંભળ્યા, કારણ કે તેમણે ઘણું બધું બોલીને આ વિવાદને ભારે અને વધારે વેગ આપ્યો છે. આખરે સવાલ તમને પણ થતો હશે કે આસ્થાના ધામમાં આવો ખેલ કેમ થાય છે? શું આ બધું શોભે છે ખરા? શંકરદાસના આક્ષેપો આપે સાંભળ્યા, પણ જેમના પર આરોપ લગાવાયા છે એ સિદ્ધરાજનું શું કહેવું છે? એ સિદ્ધરાજ મુનિ આખા આ વિવાદ પર શું કહે છે એ પણ અમે આપને સંભળાવીશું, તો આપને ખ્યાલ આવશે કે આખા વિવાદમાં સિદ્ધરાજ મુનિની ભૂમિકા શું છે, તેમણે શંકરદાસ બાપુ પર કયા પ્રકારના આક્ષેપ લગાવ્યા. શંકરદાસ બાપુ એ સિદ્ધરાજ મુનિના ગુરુ છે અને ગુરુએ જ તેમને
આ આશ્રમની ગાદી પણ આપી હતી, સંચાલન કરવાની જવાબદારી પણ સોંપી હતી. સાંભળીએ આખા કાંડમાં સિદ્ધરાજ મુનિનું શું કહેવું છે. मैं 2020 से उदासीन आश्रम तोरणिया मंदिर का गादीपति हूँ और 2020 में हमारे यहाँ ब्राह्मणशील जमात आती है, अखाड़ा आता है, श्री पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा आता है. तो उस दरमियान जो हमारे ऊपर हस्तक्षेप शंकरदास महाराज ने करा है वो हस्तक्षेप सरासर उनका खोटा है, क्योंकि अखाड़ा ने मुझे चादर विधि करी है. मैंने कोई यहाँ पे कब्जा नहीं किया और मेरे पास में सर्टिफिकेट है अखाड़े का, मुझे अखाड़े ने सर्टिफिकेट दिया है, मेरे पास में फ़ोटो है और 1000 मानस का जमनवार था उस दिन यहाँ पे. उसमें हमारे यहाँ के गांव के आज्ञामान लोग भी हैं, सब फोटो में भी हैं और जो है उन्होंने हाजिरी भी दिया और 3 दिन तक यहाँ पर जमात का रुकान हुआ था. और 2020 में हमने यहाँ पे अखाड़े का जो आया था संघ, अखाड़े की जमात आई थी, उसका हमने मीडिया में भी पहले दिया था और वो मीडिया के भी फ़ोटो पड़े और मीडिया का मेरे पास में एक अखबार का छापे का कटिंग मेरे पास फेसबुक में मैंने पोस्ट किया है, वो मेरे पास अभी भी है प्रेजेंट में. तो अगर ये लोग मेरे ऊपर करते हैं कि मैंने कब्जा किया तो उसका मैंने कब्जा कैसे कर लूँगा बताओ, जब अखाड़ा आपके सामने दे रहा है. मैंने ये तो नहीं चोरी छिपे, आप नहीं थे, मैंने कोई ताला तोड़ के मैंने किसी को बुला के कब्जा किया, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आप प्रेजेंट में बैठे हो. और दूसरी बात, इन्होंने यहाँ पे आश्रम की नुकसान करा है, इन्होंने यहाँ पे वरण बेचा है, मकान तोड़वाया है और पीछे फूल झाड़, आप जो है चलो मेरे साथ में तो मैं आपको दिखाऊं, उन्होंने बड़े बड़े मोटे पेड़ कटवाए हैं और हमने उसका विरोध किया. हमने बोला महाराज देखो अखाड़े की संपत्ति है, आश्रम की संपत्ति है या गांव के जो मंदिर लगता है गांव का भी, सबका ये तो सार्वजनिक स्थान होता है वैसे, पर ये आश्रम हमारा उदासीन आश्रम है, इसमें हमारा अधिकार महात्माओं का अधिकार है, इसमें कोई भगत जगत का कोई हमको यहाँ सपोर्ट नहीं करता है, कोई हमको खाने के लिए नहीं देता है. ये हम जैसे भी चलाते हैं, हम हमारी इच्छा से चलाते हैं कि जो भी घटता है कुछ भी होता है. तो हमारी थोड़ी सी खेती है, ये पीछे में खेती है, तो उसको भी ये लोग करने नहीं दे रहे, ज़बरदस्ती रोक लगा दी. अगर कोई ट्रैक्टर वाला आता है तो उसको मना कर देते हैं, उसको धमका के भेज देते हैं. और ये मंदिर में हमारे लाइट जलती थी आज से 20-30 साल पहले से. हमारे नारायण दास बाबा जी समाधि है, देव हो गए तो उनके टाइम से लाइट ऐसे ही चलती, कभी लाइट कटी नहीं, किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं करी. अभी जब से ये शंकरदास यहाँ से गए और उनको कोई गए उनकी मर्जी से, स्वेच्छा से गए, उनको किसी ने भगाया नहीं है, किसी ने मारा नहीं है, वो यूं गए कि हम लोगों को निकालेंगे. मतलब शंकरदास जी वो ऐसा बोल रहा है कि आपने उसको मार कर निकाल दिया. नहीं, हमने कोई उसको हाथ भी नहीं लगाया, उसको हमने हाथ भी नहीं लगाया. हम क्यों मारेंगे भाई, उसका जो भी है उसको सामान भी सब वापस दे दिया कि भैया तुम्हारा यहाँ पे मत रहो. उसने बोला मेरे खिलाफ कंप्लेंट दी पुलिस स्टेशन में कि ये इससे मेरे को जान का खतरा है, मुझसे उनको जान का खतरा है. तो मैंने बोला महाराज आप बाहर रहो, आपको मैं बुलाऊंगा नहीं, आप मेरे यहाँ आना मत, आप सुरक्षित रहो, आप अच्छे से रहो, कहीं भी रहो, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है. और मेरे पास में शंकरदास जी है ऐसा बोल रहा है, वहाँ पे अभी तोरणिया में है जो बैठे वहाँ दारू बारू पीते हैं, मांस मटन खाते हैं. नहीं, अगर मैं दारू वारू पीता हूँ तो बताओ जरा मैंने कहाँ से दारू लिया, उनको पता होगा ना. अब ऐसे तो कोई भी किसी के ऊपर आरोप लगा देगा. मैंने दारू पिया, मैंने मटन खाया, चलो मेरे को कौन सी दुकान पे मैं लेके आया, कौन सा भाई है जो मैंने जिसके साथ में मैंने खाया. ये लोग तो ऐसा भी लिखा है मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन में कि ये लोग महफिल करते हैं. यहाँ पे क्या महफिल है, कोई महफिल नहीं है. हवन विधि होती है, ब्राह्मण आते हैं मेरे पास में, सारे इनके ब्राह्मणों के कई सारे वीडियो पोस्ट करे मैंने इसी महीने के. बहुत सारे हवन होते हैं, विधि होती है, लोग आते हैं. તો આખા કેસમાં અલગ અલગ હકીકતો સામે આવી રહી છે, પણ આખા કાંડમાં એ મહિલાની ભૂમિકા શું છે તેના વિશે પણ કરીશું વાત એક બ્રેક બાદ. In association with Reliance Smart Bazaar. In association with Reliance Smart Bazaar. આશ્રમ હોય કે મંદિર કે પછી આસ્થાનું કોઈ ધામ, જ્યારે તેમાં સ્ત્રી પાત્રનો પ્રવેશ થાય ત્યારે સવાલો અનેક ઊભા થતા હોય છે. જૂનાગઢના તોરણિયા આશ્રમમાં પણ કંઈક આવું થયું. આ સ્ત્રી પાત્રનું નામ છે શ્રુતિ મુનિ, જે સિદ્ધરાજ મુનિના શિષ્ય હોવાનું માનવામાં આવે છે અને શંકરદાસ બાપુએ તેમના પર જ આક્ષેપ લગાવ્યા છે. આખા મામલે શ્રુતિ મુનિ પણ મેદાનમાં આવ્યા અને પોતાના પર લાગેલા તમામ આક્ષેપોને ફગાવી દીધા. એટલું જ નહીં, શ્રુતિ મુનિએ શંકરદાસ બાપુ પર પણ બીભત્સ ચેનચાળા અને છેડતી કર્યા હોવાના
આક્ષેપો પણ કર્યા છે। मेरे साथ बदतमीजी की, छेड़ती की, मुझे मेंटली और फिजिकली बहुत हैरास किया। वो क्या बोलते कभी भी मतलब मेरे आसपास से मुझे छूने के बहाने ढूंढते थे। और एक बार तो मेरे कमरे में चला आया शाम को और मुझे एक हाथ से पकड़ के पूरा मतलब दबोच के मेरे मतलब मैं छुड़ाने के चक्कर मेरे कपड़े वपड़े भी फट गए थे। तब सिद्धराज मुनि ने मुझे आके बचाया। और उन्होंने क्या किया, मैं बाथरूम गई थी सुबह में, तो मेरे कपड़े फटे हुए कपड़े, चप्पल और सिद्धराज मुनि के फ़ोटो फ्रेम सब लेके उन्होंने जला दिया सबूत मिटाने के बहाने। मैंने पुलिस में कंप्लेन की थी, तो फिर उसके बाद उन्होंने समझौता कर लिया और बोलते हैं कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। मेरी दिमाग ख़राब हो गई थी, मेरा दिमाग सही नहीं रहता, मेरा तबीयत ख़राब है, मेरा हाथ काम नहीं करता, मैं दवाई खाता हूँ, ये सब के। और उसने उस समय शराब पी रखी थी जब मेरे से सब छेड़ती कर रहा था। तो हाँ, यहाँ पर उसने गंगा मुनि नाम की एक औरत को बुला के रखा था 20 दिवस तक। उसके साथ उसने मौज मस्ती की, उसके साथ गलत संबंध स्थापित किया और उसका मुंह बंद करने के लिए उसने कई हजार रुपए उसको दिए हैं, 50,000 रुपए उसको दिए हैं। और उसके बाद उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखाई जब वो महिला उसको छोड़ के बावरिया चले गई तो। और उसके साथ दिलीप भी शामिल था ये सब में, दिलीप, सरपंच, जगदीश भाई। अरुणा बहन शंकर दास के पहले यहाँ रहती थी, ये आश्रम संभालती थी। तो अरुणा बहन के साथ भी शंकर दास ने छेड़ती किया, उसका भी रिपोर्ट थाने में दर्ज है। और ये गंगा मुनि जो थी वैशाली, उसका वैशाली चौहान भी नाम है, उसको उसने दूसरे भंडारे में जाके पिटवाया महात्माओं से, उस पर बालंबा में जाके उसको अटैक करवाया, उसकी भी रिपोर्ट थाने में दर्ज है। उस रात भर लॉकअप में था शंकर दास। हाँ, उसने फिर मेरे को ये करने के, मेरे को मतलब मेरा माइंड वॉश करने के लिए, मुझे अपने तरफ खींचने के लिए मेरे नाम से फर्जी विल बनाया कि मैं अपना सारा सब कुछ, ये आश्रम सब कुछ तुमको सौंपता हूँ। वो कैसे सौंप सकता है जबकि आश्रम का महंत श्री सिद्धराज मुनि है, वो तो महंत है नहीं, तो वो कैसे मेरे को सौंप सकते हैं? उसके पास प्रॉपर्टी का कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो कैसे सौंप सकता है? उसने माफ़ी मांगी थी और बोलती तुम मेरे बेटी जैसे है, हाँ मुझसे गलती हो गया, रोना गाना शुरू कर दिया, मेरे पे तरस खा, मेरे को भी बदनामी होगी ऐसा करके। और मुझे भी, मैं उनका भोजन बनाना, उनका कपड़े धोना, उनकी सेवा करती थी, मुझे भी उस पर दया, मतलब चलो अपनी भूल मान रहा है तो शायद दूसरी बार ऐसा करेगा नहीं करके। बाद में मुझे पता चला इसकी आदत ही ऐसी है। उसने तो ऐसी कभी भी ऐसी जाते आते में यहाँ वहाँ छुए तो बोलते नहीं बेटा हाथ लग गया, मेरा एक हाथ काम नहीं करता, ऐसा करके अपनी गलती छुपाता था। और मुझे उसने एक बार छेड़ती की तो तभी तुरंत मैंने दूसरे दिन जाके पुलिस में थाने में रिपोर्ट लिखा दी थी। તો શ્રુતિ મુનિ જ્યાં મેદાનમાં આવ્યા ત્યાં સિદ્ધરાજ મુનિ પણ પોતાની શિષ્યના સમર્થનમાં આવ્યા। શિષ્ય હોવાનું શંકરદાસ બાપુનો દાવો છે અને જે શંકરદાસ બાપુએ આશ્રમ સોંપ્યો હતો એ જ શંકરદાસ બાપુ પર સવાલો ઊભા કર્યા। એટલું જ નહીં, તેમના ચરિત્ર સામે પણ શંકા ઊભી કરી। 2020 से रहता हूँ, मेरी अखाड़े ने चादर विधि करी है और अभी वो मेरे ऊपर हस्तक्षेप लगा रहे कि ये आश्रम में मैं फर्जी कब्जा करके बैठा हूँ। तो मैं फर्जी कब्जा करके बैठा हूँ, मेरे पास में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और यहाँ पे जब मैं यहाँ पे आश्रम पे नहीं रहता हूँ, कहीं जाता हूँ, तो ये किसी लड़की को बुला के यहाँ पे उसके साथ में गलत काम करते, उसको फर्जी तरीके से पैसे देते, आश्रम की संपत्ति को बर्बाद करते और यहाँ पे तोड़ फोड़ करते। जब मैं विरोध करता हूँ, मैंने विरोध किया, मेरा यही विवाद चल रहा है कि मैंने विरोध किया तो इन्होंने मेरे ऊपर में केस कर दिया, पुलिस स्टेशन में फरियाद लिख दी कि ये मैं कब्जा करके बैठा हूँ। मैंने कब्जा नहीं किया हुआ है। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक माता जी है हमारे यहाँ, हमारी गुरु बहन है, उसका नाम है श्रुति मुनि। तो उसको शंकर दास जी ने बुलाया और रोज़ फ़ोन करते थे और रोज़ फ़ोन कर करके बुलाया। वो बेचारी यहाँ पे आई, तो वो जब यहाँ पे आई तो 1-2 महीने तक ठीक ठाक रहा, वो शंकर दास ठीक ठाक रहा। उसके बाद में इन्होंने, मैं कहीं बाहर गया हुआ था, प्रोग्राम प्रसंग में गया हुआ था, उसके साथ छेड़खानी करी। उसने मुझे बताया कि गुरु भाई मेरे साथ में ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ। मैं वहाँ से तुरंत वापस आया। जब मैं यहाँ आया तो मेरे आने के बावजूद भी उसने इनके कमरे में घुस के उसके साथ में छेड़खानी करी। तो मैं इनको बचाया, मैंने इनके हाथ से उसको छुड़ाया और उसके कपड़े वपड़े भी फट गए थे, इन्होंने जला दिए। और उसके बाद में मैंने इनके माताजी को ले जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करी उसके खिलाफ में कि इसने छेड़खानी करी है। तो ये अरुणा मुनि यहाँ एक साध्वी पहले रहती थी, आज से 7 बरस पहले। तो वो यहाँ पे गांव वालों ने पहले उसको रखा था और वो रहती थी, साफ़ सफाई करती थी, अच्छे से रहती थी, मुझे गांव वालों से सुनने को मिला है। और वो क्या है, उसकी कोई गलती नहीं थी, इन लोगों ने ज़बरदस्ती उसके साथ में भी छेड़खानी करी। और यहाँ माजी सरपंच गांव का है, उसका स्टेटमेंट खुद बजरंग दास दे रहा है जो इन लोगों के साथ में मिला हुआ। वो यूँ बोलता है कि सरपंच ने उसको पत्थर मारे, उसके साथ में छेड़खानी करने की कोशिश करी। तो इसलिए वो बेचारी अकेली महिला यहाँ जंगल में रहती है, यहाँ पे 2-3 किलोमीटर कोई गाँव नहीं है।
तो इसके साथ में ये शंकर दास को छोड़ दिया उसके रहते हुए भी। अब एक आदमी, आप बताइए कि जब यहाँ पे कोई अकेली महिला रह रही है, आप किसी को भी अननोन पर्सन को यहाँ पे छोड़ देंगे तो वो महिला कैसे यहाँ पे रहेगी। तो वो इस हिसाब से उसके खिलाफ कंप्लेंट करने गई पुलिस स्टेशन में। मेरी डिमांड ये है कि जो भी फैसला कोर्ट करेगा मैं उस चीज़ को मानूंगा। और ये लोग मुझे आए दिन फ़ोन के ऊपर धमकी देते, खुलेआम धमकी देते जान से मारने की। मुझे बजरंग दास जी ने भी धमकी दी है और मुझे शंकर दास ने भी धमकी दी है। और आश्रम की संपत्ति को तोड़ फोड़ के बेचा, उसका वीडियो क्लिप मैंने मीडिया में आपको दिया है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने चैनल पे उस चीज़ को दिखाएं। और मैंने थाने में कंप्लेंट भी करी है, जो इन्होंने तोड़ फोड़ करी है, जो इन्होंने यहाँ पे आश्रम की संपत्ति को क्षति पहुँचाई है मेरी गैर हाजिरी में, मुझसे पूछा भी नहीं है, तो वो भी मैंने कंप्लेंट करी हुई है। તો આખા ઘટનાક્રમમાં વિવાદ ખૂબ ચગી ગયો છે. આખા આ ઘટનાક્રમમાં મામલો હવે છેક પોલીસ સ્ટેશન સુધી પહોંચ્યો છે. અમારી સાથેની ટેલિફોનિક વાતચીતમાં સાધ્વીએ, જે શ્રુતિમુનિ છે, તેમણે કહ્યું કે ગામના અનેક લોકો અને બજરંગદાસ બાપુ સામે આક્ષેપ પણ કર્યા છે. સાધ્વીએ કહ્યું કે તેમના પર આ લોકોનો હુમલો કરાવ્યો હતો અને ગામના જ કેટલાક લોકો એ બજરંગદાસ બાપુ સાથે મળીને આ પ્રકારનું કૃત્ય કરાવે છે. એટલું જ નહીં, સાધ્વી તો ત્યાં સુધી કહે છે કે આશ્રમમાંથી અમારા તમામ દસ્તાવેજો સળગાવી દેવામાં આવ્યા છે અને સાધ્વી અને શંકરદાસ બાપુ ભેગા થઈ ગયા હોવાની વાતો પણ ચાલે છે. પણ સવાલ એ છે કે આસ્થાના ધામમાં, સંસ્કારોના આ આશ્રમમાં આ પ્રકારનું જે કાવતરા થઈ રહ્યા છે, આ પ્રકારના જે ખેલ થઈ રહ્યા છે, એ કેટલા યોગ્ય કહેવાય. અમારી વિશેષ રજૂઆતમાં અત્યારે બસ આટલું જ. ફરી મળીશું આપને સ્પર્શતા મુદ્દા સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર. In association with Reliance Smart Bazaar. નેશનલ પેમેન્ટ્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયાના ડેટા અનુસાર યુનિફાઈડ પેમેન્ટ્સ ઇન્ટરફેસ પરના વ્યવહારોની સંખ્યા દર મહિને 8% વધીને 16.73 બિલિયનના રેકોર્ડને સ્પર્શવા સાથે ડિસેમ્બરમાં ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સે તેમનું ઉપરનું વલણ ચાલુ રાખ્યું હતું. યુપીઆઈ ટ્રાન્ઝેક્શનનું મૂલ્ય પણ 8% વધીને ₹23.25 લાખ કરોડ થયું છે, જે નવેમ્બરમાં ₹21.55 લાખ કરોડ હતું. આખા વર્ષ માટે યુપીઆઈએ લગભગ 172 બિલિયન વ્યવહારો પર પ્રક્રિયા કરી, જે 2023માં 118 બિલિયનથી 46%નો વધારો દર્શાવે છે. સરકારે હાલમાં જ પ્રધાનમંત્રી ફસલ બીમા યોજનાને લંબાવી છે, જેથી 4 કરોડથી પણ વધુ ખેડૂતોને તેનો લાભ મળશે. કેન્દ્રીય મંત્રી શિવરાજસિંહ ચૌહાણે એક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે આ માટે સરકારે કુલ 6,95,000 કરોડ રૂપિયાની ફાળવણી કરી છે, જેથી કુદરતી આફતથી પાકને બચાવવા માટે ખેડૂતોને સરકાર તરફથી વીમાની સહાય મળી રહે. હાલ સુધીમાં આ યોજના હેઠળ ખેડૂતોને 1,70,000 કરોડ રૂપિયાના પાક વીમાની સહાય મળી છે. આ યોજનાથી વર્ષ 2026 સુધીમાં આ યોજનાને યથાવત રાખવામાં આવશે. ડિસેમ્બર 2024 માટે ભારતનું ગ્રોસ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ કલેક્શન ડિસેમ્બર 2023માં 1.65 લાખ કરોડ રૂપિયાની સરખામણીમાં વધીને ₹1.77 લાખ કરોડ થયું છે. આ કલેક્શન વાર્ષિક ધોરણે 7.3%ના વધારાને દર્શાવે છે, જે ડેટા દ્વારા બહાર પાડવામાં આવ્યો છે. ડિસેમ્બર કલેક્શનમાં સેન્ટ્રલ જીએસટીમાંથી ₹32,836 કરોડ, સ્ટેટ જીએસટીમાંથી ₹40,499 કરોડ, ઇન્ટિગ્રેટેડ જીએસટીમાંથી ₹47,783 કરોડ અને સેસમાંથી 11,471 કરોડનો સમાવેશ થાય છે. સ્થાનિક વ્યવહારોમાંથી જીએસટીની આવક 8.4% વધીને ₹1.32 લાખ કરોડ થઈ છે, જ્યારે આયાતમાંથી કલેક્શન 4% વધીને ₹44,268 કરોડ થયું છે. ભારતમાં વાહનોના છૂટક વેચાણમાં 2024માં 9%નો વધારો થયો હતો, જે લગભગ 26.1 મિલિયન યુનિટના વિક્રમ સુધી પહોંચ્યો હતો અને 2018માં નિર્ધારિત 25.4 મિલિયન યુનિટની પ્રી કોવિડ ટોચને વટાવી ગયો હતો. 2023માં વેચાણ 24 મિલિયન યુનિટથી વધીને સતત 2 વર્ષમાં 2 આંકડાની વૃદ્ધિને અનુસરે છે. પેસેન્જર વ્હીકલનું વેચાણ સિંગલ ડિજિટમાં વધવાની ધારણા છે. ટુ વ્હીલરનું વેચાણ 6 થી 8% વધવાની ધારણા છે અને ટ્રેક્ટરનું વેચાણ 3% વધવાની ધારણા છે. કેન્દ્ર સરકારે કેબિનેટની બેઠકના એક મહત્વના નિર્ણય હેઠળ ખાતર માટે સબસિડીની જાહેરાત કરી હતી. ડીએપી ખાતર માટે એક વખતની સ્પેશિયલ પેકેજ હેઠળ સબસિડી જાહેર કરવામાં આવી છે, જેમાં બધું મળીને ₹2625 કરોડની ફાળવણી સરકારે કરી છે. મતલબ કે જો ખાતરના પ્રતિ થેલી ભાવ વધે છે
તો તે વધારાનો ખર્ચ સરકારે પોતાના શિરે લઈ ખેડૂતોને મોટી રાહત આપી છે. જુલાઈ 2024માં સરકારે આ જ રીતે એક વખતના સ્પેશિયલ પેકેજની જાહેરાત કરી હતી. વર્ષ 2025ની શરૂઆતમાં ફરી નવી જાહેરાત કરી ખેડૂતોને રાહત અપાઈ છે. in association with Reliance Smart Bazaar.